Good afternoon, class 10th. Now we are proceeding the third chapter, that is the money and credit. So we are talking about these things today. This money, the modern kind of the money, we have different kind of the money. So we will discuss about this chapter. So look, there is a story of the money. ठीक है, हर चीज़ की तरह पैसे की भी कहानी है. We remember in the old time gold coins in the darbar of the king on Maharaja, राजा के दरबार में. फिर silver coins. Then we have the rupees coins, rupees notes in the British time. Then we have the international currency which is acceptance in the large part of the world like the pound. And then we have the plastic currency. As I have seen you, these are the plastic currency. And then e-money, electronic money, that is rupee pay and so many applications on your mobile phone, Paytm, and the cyber money. Bitcoin, we know what the Bitcoin is. So that is the story of the money. That's a very fascinating story. So today we are talking about this. It's a very fascinating story. But one of the important things, this modern money has related to the banking system. So in order to understanding this all the different component of the money, we have to be study the banking system, that is in the another part. So the first thing has been written there, Reserve Bank of India, the guaranteed by the central government and the Reserve Bank of India. Okay, now moving. Just before going to money and credit, revise the class 9. The first chapter, the story of the Palampur, there is the organization of production. Have you remember? Or in another word, we can say there is a requirement. There are the requirement of 4 important element in any productions in the economic activities. क्लास 9th में आपने पढ़ा था किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रोडक्शंस के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. द फर्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मे बी द लैंड, मिनरल एंड एनी अदर थिंग्स. Second is the labor, third is the human resources, we also study about that, and the fourth, the most important, is the credit and the capital. Have you remembered this one? The credit and the capital is the fourth element. So we will discuss about the credit and the capital. So money, credit is a crucial element in the economical life. So economical activities, production, services could not take place without the money and the credit or the capital. So we will discuss about this. So there is a questions to a student. So how many ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन ए सिंगल डे. आप क्या मुझे बता सकते हैं? ओके, बिफोर दिस लॉकडाउन एक दिन में जो पैसा आपके पास था उसके कितने ट्रांजैक्शंस होते थे? ठीक है, ये मेरे पास मनी है, माई पेरेंट्स हैज़ गिवन मी, आई हैव टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, मे बी दे हैव टेकन फ्रॉम द नेबर्स, क्या पता उन्होंने पड़ोसी से लिया हो या वो अपने एटीएम से निकाल के लाए हो. एटीएम से लाए तो उसके चार्जेस हुए होंगे, एटीएम से निकाला, पहला ट्रांजिशन. देन दे गिव इट टू यू, आपको आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया. दूसरा ट्रांजिशन, आप फिर मार्केट में गए, आपने उसके बदले में क्या लिया? आपने मार्केट में जाके शॉपकीपर से अपनी नोटबुक ली जो आपकी फिनिश हो चुकी थी. ठीक है, मैथ की नोटबुक ली आपने और नोटबुक के बदले आपने ये ट्रांजिशंस हुआ. और उस शख्स ने, हो सकता है उस शॉपकीपर ने शाम तक जाते जाते ऐसे बहुत सारी मनी जो उससे कलेक्ट हुई थी वो उसको किसने दे दी? बैंक में जाके जमा कर दी. और बैंक ने, हो सकता है बैंक में कोई मनी लेने आया था, बैंक ने उसको दे दिया वो मनी. तो आपने देखा कितने ट्रांजिशंस होते हैं एक मनी में. तो यही उस मनी का नेचर्स है. और मनी क्यों आता है, ट्रांजिशंस के रूप में कैसे यूज होता है, वी विल डिस्कस टुडे ओनली. ओके, ट्रांजिशंस 2 तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट, द एक्चुअल एंड प्रॉमिस टू पे द मनी लेटर. 2 तरह के ट्रांजिशन होते हैं. आपने मेरे से पैसा मांगा, मैंने आपको पैसा दिया, दैट इज द एक्चुअल ट्रांजिशंस. दूसरा हो सकता है आपने कहा कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, आप मुझे दे दो, कल को मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा. या आपने इस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में भी आप ट्रांजिशंस कर सकते हैं जिसमें आप मनी तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आप प्रॉमिस कर रहे हैं और इसके बदले में मनी अकाउंट से चले जाएगी. तो ये वैसे ही एक्चुअल का एग्जांपल है चेक. तो आपके एक्चुअल ट्रांजिशंस हो सकते हैं और प्रॉमिस टू पे द मनी लेटर, और आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप बाद में पैसा दे देंगे. तो 2 तरह के ट्रांजिशंस होते हैं. क्लासरूम में हम कहते हैं ना, आज हमारे पास पैसे नहीं है यार, आज कुछ मन है ये इंजॉय करने का, तो ऐसा करते हैं, पिजेरिया में जाएंगे तो ऐसा कर दो, आज हमें आप इतना पैसा दे दो यार, सब लोग पार्टी करते हैं, कल मैं आपको दे दूंगा. तो आपने क्या किया? प्रॉमिस टू पे द मनी लेटर. तो हम देखते हैं कि 2 तरह के ट्रांजिशंस मनी के हैं. एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रांजिशंस आर मेड इन मनी, कि क्यों हम ट्रांजिशंस मनी के रूप में करते हैं. हम कुछ और भी तो कर सकते थे. ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्टोरी में जाना पड़ेगा. ये आपका चैप्टर 3 है. क्वेश्चंस आपका था, व्हाई ट्रांजिशंस आर मेड इन द मनी, कि आप जो ट्रांजिशंस होता है पैसे के रूप में क्यों करते हैं. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे. ये अंकल शूज बेच रहे हैं, आपने देखा, ये कहते हैं आई विल गिव यू शूज फॉर योर वीट, और ये अंकल बगल में वीट बेच रहे हैं, ये कहते हैं आई डोंट नीड द शूज, आई नीड द क्लोथ.
ये अंकल कहते हैं कि मैं आपको, इनके पास मनी नहीं है। मनी क्यों आई एंट्री में? इनके पास मनी नहीं है ये, लेकिन ये कह रहे हैं मैं ये जूते बनाते हैं, शूज़ मेकर है, और ये कहते हैं कि भाई मुझे, इनको चाहिए वीट, इसके पास वीट है, लेकिन ये बंदा वीट नहीं बेचना चाहता, इसको क्लोथ चाहिए। नीचे वाला एक अंकल है, वो कह रहे आई वांट शू बट आई डोंट हैव ए वीट, इनको शूज चाहिए लेकिन इनके पास वीट नहीं है क्योंकि इसको वीट है। इनके पास क्या है? मनी नहीं है। ठीक है, इनके पास मनी एक्सचेंज के रूप में नहीं है, हमने बात किया था मनी एक्सचेंज के रूप में काम आती है। तो ट्रांजिशन क्यों होता है? हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें आपने देखा एक शूज मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, वो अपने शूज को सेल करना चाहते हैं। अब वो शूज को सेल करना चाहते हैं, उसके बदले में क्या चाहते हैं? वीट। देखो शुरुआत में स्टोरी में ये है कि जो शूज बेचने वाले अंकल हैं वो अब सेल करना चाहते हैं अपने शूज को, और उसके बदले में उनको वीट चाहिए, लेकिन उनको ऐसा शख्स नहीं मिल रहा है जो वीट देना चाहता और बदले में जिसको शूज मिले। तो यहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट, मनी कैसे इस पूरे ट्रांजिशंस को या पूरा इस एक्सचेंज को, इस सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल करती है? जो शूज वाले अंकल थे उन्होंने शूज किसी को भी बेच दिया मार्केट में, उसके बदले में उनको मनी मिली, ये मनी है। और इस मनी से वो उसके पास चले गए जिसके पास वीट था, क्योंकि वीट वाले ने भी अपना वीट को किसी जो उसको क्लोथ चाहिए था, क्लोथ के बदले में बेचा था, उसके पास मनी थी, और इन्होंने जाके क्या कर दिया? उससे वीट ले लिया, या किसी और शख्स से भी। तो आपने देखा कि मनी यहाँ पे क्या कर रही है? इंटरमीडिएट कर रही है। अगर यहाँ पे मनी नहीं होती फॉर द टाइम बीइंग, एक इंस्टेंस के रूप में मनी को हटा लो, तो क्या होता? व्हाट हैपन इफ द डायरेक्टली एक्सचेंज टेक प्लेस? अगर सूज के बदले वीट होता और वीट के बदले सूज होता विदाउट यूजिंग मनी, ये बहुत टिपिकल सिचुएशंस होती है, इतनी टिपिकल सिचुएशंस होती कि अब क्या करना पड़ता? हमें क्या करना पड़ता? दोनों पार्टीज को इसमें एग्री होना पड़ता। किसको? सूज बेचने वाले अंकल को वीट खरीदना था और वीट वाले अंकल को सूज खरीदने होते। हम ये दो लोग कहाँ से ढूंढते? इसको टिपिकली हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय बोलते हैं, जहां आप क्या करते हैं? आप गुड्स एक्सचेंज करते हैं, और यहां पे आपको सेल करने वाला और बाय करने वाला दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। Here both parties have to agree to sell and buy each other commodities। यहाँ पे दोनों पार्टीज को एक दूसरे एग्री होना चाहिए कि वो वही बेचना चाहते हैं जो दूसरा खरीदना चाहता है, दूसरा वही खरीदना चाहता है जो पहला बेचना चाहता है। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। प्रॉब्लम यह है कि बार्टर सिस्टम जो है उसमें आपको डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स चाहिए, यानी जो खरीदना चाहता है और दूसरा उसे ही बेचना चाहता है, और जो बेचना चाहता है दूसरा उसको खरीदना चाहता है। और ये बहुत ही इसेंशियल फीचर है बार्टर सिस्टम्स का। क्या? डबल कोइंसिडेंट ऑफ द वांट्स। तो क्या? व्हाट अ पर्सन्स डिजायर टू सेल, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर वांट्स। ये जो बेचना चाहते हैं दूसरा वही खरीदना चाहता है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज व्हाई ट्रांजिशंस आर मेड इन मनी। ट्रांजिशन मनी में क्यों होता है? इसलिए होता है कि होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज कमोडिटी एंड द सर्विसेज। अगर आपके पास मनी है, आपने देखा था यहाँ पे, तो आपने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज को आसानी से आपने एक्सचेंज कर दिया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो हम देखते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स बहुत रेयर होता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि इन तीनों की जो रिक्वायरमेंट है एक जैसी हो जाए। अपनी बुक के आप फर्स्ट चैप्टर में देखिएगा, आपको पीडीएफ भेजा जा रहा है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो जब यहाँ पे मनी की एंट्री होती है इस फिल्म में, कैन मेक इजियर टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ट्रांजिशंस गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में फ्लो होना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हम मनी देखते हैं। मनी क्या है? द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है। मनी कुछ नहीं है, मनी इंटरमीडिएट है। इस मनी की कोई हैसियत नहीं है सिवाय इंटरमीडिएट की, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ों को बदलने के काम में आती है। और ये क्या कहती है? एलिमिनेट्स। और ये मनी क्या करती है? एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, कि आपको डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, ये कोइंसिडेंट, यह दुर्घटना कि जो शख्स कुछ बेचना चाह रहा है और जो खरीदना चाह रहा है दोनों एक जैसा ही चाहते हों, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो मनी एक बहुत ही इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है, और ये जो एलिमिनेट करता है द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको पता ना डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या होता है? जब सूज वाले को वीट और वीट वाले को सूज की जरूरत थी, तो मनी के लिए इसको आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या देखा? हमने इस पूरी मॉन में देखा कि सूज मैन्युफैक्चर ने क्या किया? फार्मर के पास गए, फार्मर से उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मर से वीट खरीद लिया, और उनने सूज किसी को मार्केट में बेच दिया। उस मनी से उन्होंने क्या खरीद लिया? उन्होंने अपना वीट खरीद लिया। तो हम देखते हैं इसमें क्या है? सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए मनी क्या है? मनी को हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक इंटरमीडिएटरी के रूप में मनी का जो रोल है वो है एक एक्सचेंज का। दैट्स ऑल।